मुंबईतील गोरेगाव पश्चिम बांगुरनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक प्रकरण उघडकीस आले आहे, ज्यात कनिका सुबीर गोल्डर या महिलेवर बनावट मारहाणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये कुंटणखाना चालवण्याप्रकरणी महिलेला अटक करण्यात आली होती। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार संध्याकाळी 6 नंतर कोणत्याही महिलेला अटक करता येत नाही, पण महिलेचे म्हणणे आहे की संध्याकाळी 6 नंतर तिला रात्रभर बांगुरनगर पोलीस ठाण्यात ठेवण्यात आले होते। तसेच माझ्या मोबाईलवर कोणी चॅट केले की काय झाले हे मला माहीत नाही, परंतु घटनेच्या दिवशी एकाच वेळी 10 ते 12 लोक माझ्या घरात घुसले आणि माझ्या घरात 3 पेईंग गेस्ट थांबले होते। कनिका सुबीर गोल्डर हा कुंटलखाना चालवतो असे त्यांना पोलीस असल्याचे सांगण्यास भाग पाडले, ज्यामध्ये तिन्ही पेईंग गेस्ट महिलेची सुटका करण्यास आली। कनिका सुबीर गोल्डर ही महिला 3 महिने तुरुंगात राहिल्यानंतर तुरुंगातून बाहेर आली, तेव्हा तिने घटनेच्या दिवशी बांगुरनगर पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे लेखी पत्र दिले आणि या घटनेतील सर्व लोकांविरुद्ध स्वतःला निर्दोष घोषित केले। या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणीही केली। हाईकोर्ट से आपकी क्या उम्मीद है? হাইকোর্টের থেকে আমার উম্মিদ আছে যে এই যে আমার উপরে যে অন্যায় হয়েছে এই অন্যায়টা কভার করে দেবে। পুলিশ যে রং করেছে সেই রংটা হাইকোর্ট ঠিকভাবে নেবে। আমি কনিকা সুবীর গোলদার, আমি থাকি কমপ্লেক্স কান্দিলি ইস্টে থাকি। আমার উপরে একটা কেস হয়েছে, কিন্তু এটার ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আমার একটা ঘর আছে যেটা ওসিপাড়া পুলিশ স্টেশন পুলিশ স্টেশনের কাছে আছে। তো আমি ওখানে ভাড়াটি রাখতাম পেইং গেস্ট হিসাবে। তো পেইং গেস্ট হিসাবে একটু পয়সাও বেশি পাওয়া যায়, সেই হিসাবে পেইং গেস্টে রাখতাম। তো 3টে পেইং গেস্ট আমার ঘরে ছিল, তো আমি পয়সা উঠাতে গেছিলাম। তো যেদিন গেছি সেদিন আমার শরীরটা খারাপ লাগছিল, আমি ওখানে শুয়ে পড়েছি। শুয়ে পড়ার পরে 7-8টার সময় 3-4টে লোক আমার ঘরে ঢুকে গিয়ে আমাকে উল্টো পাল্টা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা শুরু করলো। আমি তখন বললাম, এগুলো কি বলছেন আপনারা? ওরা আমার ফোন নিয়ে নিল আমার কাছ থেকে, আমাকে চলো করে পুলিশ স্টেশন চলো। আমি বলি, কেন, কিসের জন্য আমি পুলিশ স্টেশন যাবো? আমি কি করেছি? আমি তো কিছু করিনি। বলে, পুলিশ স্টেশন গেলেই তুমি বুঝতে পারবে তুমি কি করেছো না করেছো, তুমি কি করছো না করছো, তুমি তখনই বুঝতে পারবে। আমি বলি, আমি কিছু করিনি, আমি পুলিশ স্টেশনে যাব না। ওই টাইমের মধ্যে দুটো মেয়ে ছেলে পুলিশ 8টার সময় এলো। 8টার সময় আসার পরে আমাকে নিয়ে পুলিশ স্টেশনে গেল। পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার পরে আমি বারবার জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে। ওরা আমাকে কিচ্ছু বললো না। ওরা বললো, আপনি যত চুপ করে থাকবেন তত আপনিও ছাড়া পাবেন, আমরাও ছাড়া পাবো। যদি আপনি বকবক করতে থাকেন তাহলে আপনিও ছাড়া পাবেন না, আমাদেরও রাত হয়ে যাবে। তো আমি চুপ করে বসেই রইলাম, কি হচ্ছে না হচ্ছে ওরা লিখেই যাচ্ছে। আমি এর ব্যাপারে তো কোনোদিন আমি এরকম সমস্যায় কোনোদিন পড়িনি, আমি বুঝতে পারছি না। তারপরে রাত্রি 2টোর সময় আমি বলি, আমি এবার তো বাড়ি চলে যাই। বলছে, না, আপনার ছাড়া হবে, পরে আপনি বুঝতে পারবেন, আজকে রাত্রেবেলা এখানেই থাকতে হবে। আমি, আমার বাচ্চারা কান্নাকাটি করবে, আমার বাচ্চারা আমাকে না পেয়ে ওরা টেনশন নেবে। তখন ওরা মোবাইলগুলো নিয়ে সুইচ অফ করে দিল। তো বাচ্চারা আমাকে খুঁজে ওরা মোবাইল করে ওরা তো কোথাও পেল না, ওরা বাড়িতেই রইলো। ভাবলো যে কি হয়েছে না হয়েছে, ওরা কিচ্ছু বুঝতে পারলো না। তারপরে সকালবেলা একটা পুলিশ অফিসার ওই মোবাইল নিয়ে এসে বলছে, তোমার বাড়িতে ফোন করো, তো বলো যে কোর্টে যেতে হবে। তখন আমি বলি, কেন কোর্টে কেন? আমার বাচ্চারা এইসব জানে না, ওরা কোর্টে যেতে পারবে না। তখন উনি তাড়াতাড়ি ফোনটাকে নিয়ে গিয়ে উনি নিজেই বলল, তোমরা মাঝগাঁও কোর্টে চলে আসো, তারপরে উকিলও নিয়ে আসো সাথে। তখন আমার মেয়েরা গেল, দেখে আমাকে
কেঁদে ফেললো। মা তোমার কি হয়েছে, তোমাকে কেন এরকম করে? আমি জানি না মা, আমার কি হয়েছে আমি কিছু জানি না। তারপরে তো সেটা তো বুঝতেই পারছি কি হয়েছে। তারপরে আমাকে 2-2.5 মাসের জন্য আমাকে অ্যারেস্ট করার পরে যখন আমি বাইরে এলাম তখন জানতে পারলাম যে আমি যে 2023-এ একটা আমার গয়না হারিয়ে যাওয়ার ক্লেম করেছিল, যে মেয়েটা চুরি করেছিল তার নামে যে এফআইআর করেছি, সেই মেয়েটা তার বন্ধু বান্ধব নিয়ে আমার উপর ওইরকম একটা বাজে ক্লেম করে আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। সেই ফাঁসানোতে পুলিশরাও বিশ্বাস করে আমাকে ফাঁসিয়েছে। এখন কিভাবে ফাঁসিয়েছে পুলিশে, এটা একটা মিথ্যা জিনিস দিয়ে আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমি এর মধ্যে কিচ্ছু জানি না। পুলিশদেরকে আমি অনেকভাবে রিকোয়েস্ট করেছি কিন্তু ওরা আমাকে কিছুতেই কোনো কথাই বললো না। যা হওয়ার তো হয়ে গেছে। আমার সোশ্যাল লাইফ বলে এখন আর কিছুই নেই। আমার বাচ্চাদেরও সোশ্যাল লাইফে কিছুই থাকলো না। ওরা কত শিক্ষিত কত কি, কিন্তু আমার লাইফ এখন কি হবে আমি নিজেও জানি না। सर, इनको डिलिबरेटली पीटा केस में फंसाया गया है। ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है कि इस किस्म के क्राइम में इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट है। इसका रीज़न ये है कि इन्होंने जो है गार्गी कुंड पे जो FIR किया है उसके हेल्प से, एक अमित जलान के हेल्प से पुलिस ने इनको फंसाया केस में। ऐसा कोई भी वो नहीं कि इनकी लाइफ स्टाइल उस क्राइम के तहत की है। ये विक्टिम है, आरोपी नहीं। और आपका क्लाइंट का मेरा क्लाइंट निर्दोष है। इसको ज़बरदस्ती किसी के इंस्ट्रक्शन पे झूठे केस में फंसाया गया है। शी इज़ अ इनोसेंट। सर, लगभग आपके क्लाइंट को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया और उनका कहना कि इस केस में हमें फंसाया गया है, इससे क्या कहेंगे? देखिए, अव्वलन तो इनको जो है सबसे बड़े गलत तरीके से अरेस्ट किया। लेडी को सनसेट के बाद अरेस्ट नहीं करते, लेकिन उनको 7:30 बजे अरेस्ट किया गया और कम से कम 10-15 लोग आए डायरेक्ट इनके पास और उठा के लेके गए। और पुलिस स्टेशन में पहले इनको FIR में बुक किया, फिर बताया कि हम लोगों ने आपको ऐसे केस में उठाया है। तो मेरे क्लाइंट ने बोला कि भाई आप जो भी हमको लिया है आपके एलिगेशन को मैं डिटेक्ट करती हूँ, चैलेंज करती हूँ, ऐसा कुछ भी सिम्टम्स नहीं है। लेकिन उन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझको मेरा कुछ करने को, मेरे वकील को कांटेक्ट भी नहीं करने दिया और मेरे क्लाइंट को मुझसे कांटेक्ट भी नहीं किया और डायरेक्ट FIR में बुक करके तो हॉलीडे रिमांड में कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया, जो कि टोटल पुलिस का एक्शन गलत है। गलत तरीके से बदले की भावना के हिसाब से पुलिस ने इनको अरेस्ट किया। बदला इस वजह से कि इन्होंने किसी एक लेडी के ऊपर FIR किया था, वो पुलिस से बहुत क्लोज है। पुलिस उसकी हेल्प करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये पूरा कॉन्स्पिरेसी करके इनको गलत तरीके से अरेस्ट किया। तो ये पूरा मामला है कहाँ? ये कुछ नहीं, मामला कुछ है ही नहीं। पुलिस ने इस मामले को बनाया है। एक्चुअली ये कंप्लेनेंट है, उसने कंप्लेंट किया, पुलिस ने बड़ी मुश्किल से FIR लिया, उसको अरेस्ट नहीं किया। पुलिस को बार बार वो करते रही, फिर उसको पुलिस ने इस्तेमाल करके इनको ये झूठे केस से बेचारी दुनिया भर की बीमारी 1.5-2 महीना तक जो है जेल में रही है विदाउट कमिटिंग एनी क्राइम। इसके साथ अन्याय किया पुलिस ने। लगभग कितना पुराना ये केस है? सर, ये केस फरवरी 2024 का है, मतलब 3-4 महीना पहले का है। आपका अगला स्टेप इस केस पे क्या रहने वाला है? क्या आपका अगला स्टेप क्या रहने वाला है? नहीं, हम लोग जो है अभी रिजेक्ट किए हैं, कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए अर्जी डाले हैं और हम लोग अभी हाई कोर्ट में इसको क्वेश्चन करने के लिए अर्जी डालेंगे कि ये FIR बोगस है, गलत तरीके से बदले की भावना पे, किसी के डायरेक्शन पे, किसी को सेटिस्फाई करने के लिए झूठा FIR पे किया गया।
सर अभी कि आपके क्लाइंट का कहना है कि हमारे घर में कुछ लोग गलत तरीके से आए और हमें फंसाए, तो क्या कहेंगे? गलत करने से यह कि बगैर इनको इंटीमेट किए डायरेक्ट घर में घुस गए और उठा के लेके गए। इनको मौका भी नहीं दिया कि किसी से बात करने, अपने वकील से, अपने बेटी और अपने हस्बैंड से। खाली पुलिस स्टेशन में ले गए और FIR करके सुबह रिमांड में कर दिया। फिर उनको उनके वकील लोगों को बाद में पता चला, जब तक ये बुक हो गई थी FIR में। सर ये केस कौन से पुलिस स्टेशन के हद में आया? भांगूर नगर पुलिस स्टेशन के हद में आता है। उसमें कुछ ऑफिसर इसके गार्गी कुंदर के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और उसको VIP ट्रीटमेंट देते हैं। उसकी वजह हम लोग को आज तक समझ में नहीं आई। नवीन घडामोडी पाहण्यासाठी आजच आम्ही मुंबईकर 24 तासला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि अपडेट रहा।